Welcome to Ashwini classes. Today in this video we are going to discuss about integers. This is not only important for class 6-7 standard but it is for general use. This is important for its general use. Anywhere for general mathematical calculation integers required. So before discussing integers, first of all you should know one more word is there called natural number. Natural numbers. Natural numbers. We must know first of all what are called natural numbers. Counting numbers. Natural numbers are also called counting numbers. The numbers which we are used for counting. काउंटिंग के लिए जो नंबर हम लोग यूज करते हैं, जैसे यूज करते हैं ना 1 2 3 4 ऐसे करके काउंटिंग करते हैं ना, नंबर्स, ये सब नंबर देखिए 1 2 3 ऐसे करके काउंटिंग करते हैं, आगे 4 5 6 7 8, these all are called natural numbers. The numbers 1 2 3 4 and so dot dot मतलब आगे इस तरह से चलता जाएगा, are called natural number. Natural numbers. I hope you have understood what does it mean natural numbers. Second type of number which is called whole numbers. You should know whole numbers. Natural numbers. What are natural numbers? As we read just now 1 2 3 and so on, these are called natural numbers. If you include one more, जीरो को अगर इंक्लूड कर देते हैं तो ये जीरो ऑनवर्ड 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड होल नंबर्स. होल नंबर मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो. नेचुरल नंबर में एक और ऐड कर दीजिए जीरो, तो ये सबको हम लोग बोलते हैं होल नंबर्स. सो ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, बट इफ एंड एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर. ये जीरो देखिए एक होल नंबर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है. तो इस तरह से सब होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, लेकिन सारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है. ये एक जानकारी का चीज था. दूसरा, ये जो नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऑनवर्ड, दीज आर नेचुरल नंबर्स. तो व्हाट इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर? ये है फर्स्ट नेचुरल नंबर, as well as it is the smallest one. First as well as smallest. What will be the last natural number? We don't know. Last क्या होगा पता नहीं. 1 2 3 4 5 6 1000 10,000 लाख करोड़ सब नेचुरल नंबर है. Last is not defined. It means we can't say what is the greatest natural number. सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन है बोलने से मालूम नहीं, सबसे छोटा 1 है. So greatest natural number is not defined. In case of whole number, what is the first whole number? 0, and is the smallest also. What will be the last, or you can say greatest? It is not defined. So I hope you have understood these things. Then after come to the main things, that is called integers. Integers क्या है देखिए, 1 2 3 and so on, these are natural numbers as we have read. -1 -2 -3, what are these? These are negative natural number, you can say. ये 1 2 3 4 पॉजिटिव नेचुरल नंबर हो गया, इधर नेगेटिव नेचुरल नंबर हो गया. साथ में इंक्लूड कर दीजिए जीरो,
ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये सब को मिला के हम लोग बोलते हैं इंटीजर। ये सब हुआ होल नंबर, आर होल नंबर, होल numbers. Okay, and these are called integers, 0 1 2 3 4 and so on, and this side -1 -2 -3 and so on are called integers. दो चार बात इसमें आप देखिए, जैसे जीरो के बाद इधर आगे मतलब इधर हम लोग कह सकते हैं कि राइट, इधर लेफ्ट। जीरो के बाद लेफ्ट में ये इंक्रीज होता जा रहा है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दिस साइड इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड दिस साइड इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। ऐसे 1 0 से ये छोटा हो गया -1, उससे छोटा -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। जैसे कोई एक पॉइंट लिए, यहां से इधर अगर +1 लेते हैं तो बैक साइड अगर चलेंगे उतना ही डिस्टेंस तो उसको बोलेंगे -1। अगर इधर यहां तक मान लीजिए ये डिस्टेंस 2 है, 2 मीटर 2 सेंटीमीटर जो भी, इसके ऑपोजिट इधर अगर 2 सेंटीमीटर चलते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे -2। इस तरह से नेगेटिव मतलब वो घटता जाता है, -1 से छोटा है -2, -2 से छोटा है -3, -3 से छोटा होगा -4 एंड सो ऑन। दिस साइड इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग and right hand side it is going on increasing. All these numbers are called integers. All natural numbers are integers, whole numbers are also integers, but all integers, any integers may not be natural number or whole number. जैसे ये -1 ये इंटीजर है लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है, ठीक है। जैसे आप नेचुरल नंबर और होल नंबर में देखिए, उसी तरह से इंटीजर में बोलिएगा कि 0 1 2 3 व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट, नॉट डिफाइंड। -1 -2 -3 इट इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग, बट व्हाट विल बी द लीस्ट, सबसे छोटा कौन होगा, नॉट डिफाइंड। तो ग्रेटेस्ट नेचुरल इंटीजर एज वेल एज लीस्ट इंटीजर्स आर नॉट डिफाइंड। ओके, सो दीज आर कॉल्ड योर इंटीजर्स। सो आई होप you have understood what are natural numbers, what are whole number, what are integers. Now the main thing is we learn how to do operations, mathematical operations on integers. Mathematical operations means ये जैसे addition, subtraction, multiplication, division, these are called mathematical operations. तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं ये इंटीजर्स में कैसे यूज करते हैं, मतलब इंटीजर्स को कैसे ऐड करते हैं, इंटीजर्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो इंटीजर्स है तो उसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कैसे करेंगे, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स या सिंप्लीफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। सो वी नाउ सी हाउ टू use these mathematical operations on integers. Integers में ये सब mathematical operation प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब को कैसे हम लोग यूज करेंगे, ये आपके लिए खास इम्पॉर्टेंट है और इसको आप समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन। एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स पहले सीखिए। दो इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखा जाए कि हाउ टू ऐड टू इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स मीन्स इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। अभी देखिए ना, 0 1 2 3 4 इधर -1 -2 -3 -4 ये सब इंटीजर्स है, मतलब इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब दो इंटीजर्स को ऐड कैसे करेंगे, दो इंटीजर्स को जब ऐड करेंगे तो दोनों इंटीजर्स हो सकता है पॉजिटिव हो
दोनों हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो। तो हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे ऐड करेंगे। अगर आपका एक इंटीजर पॉजिटिव है, प्लस में है, दूसरा इंटीजर भी अगर प्लस में है, एक इंटीजर प्लस में है, दूसरा इंटीजर भी आपका प्लस में है, और ये दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड करते हैं, तो फाइनली आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको ऐड करना पड़ेगा, एडिशन। एडिशन होगा एंड साइन इज प्लस VE का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी एडिशन होगा और साइन होगा प्लस का। अगर दो इंटीजर है, दोनों प्लस में है और उसको ऐड करना है तो क्या होगा, ऐड करेंगे हम लोग, जैसे ऐड करते हैं, और साइन होगा पॉजिटिव का। एक एग्जांपल देखें, जैसे एक इंटीजर है +5, एक इंटीजर है +2, ये दोनों को ऐड करना है, बीच में प्लस है, तो क्या होगा, एडिशन होगा, दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 2 7, और साइन होगा प्लस का, मीन्स +5 +2 विल बी योर +7। ओके, दोनों इंटीजर अगर प्लस है सीधा ऐड कर दीजिए और साइन प्लस का लगा दीजिए, काम खत्म आपका। अगर आपका एक नेगेटिव है, दूसरा भी नेगेटिव है, और इसको आप ऐड करना चाहते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करना चाहते हैं दूसरे नेगेटिव इंटीजर में, तो क्या कीजिएगा, आप ऐड कीजिएगा, दोनों को एडिशन होगा, और साइन जो आएगा आपका, साइन इज नेगेटिव, ऐसा -V मतलब नेगेटिव। दो माइनस वाले इंटीजर को अगर ऐड करते हैं देयर विल बी एडिशन बट साइन विल बी नेगेटिव। लेट अस सी, सपोज यू आर एडिंग -5 एंड -2, ये दोनों को ऐड कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 5 and 2 7, साइन इज नेगेटिव, साइन माइनस का कर देंगे, दो माइनस को ऐड करने के लिए ऐड करेंगे, लेकिन साइन हो जाएगा माइनस का। इसको ऐसे याद रखिएगा, माइनस माइनस दोनों अगर है तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, अगर एक प्लस में है और उसमें आप ऐड करना चाहते हैं एक माइनस को, तो क्या होगा, एक इंटीजर प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो क्या होगा, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, छोटा को बड़ा से, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम बिगर, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम बिगर, यानी छोटा को बड़ा से घटाएंगे, एंड साइन ऑफ बिगर, और साइन होगा बिगर का। अगर एक माइनस में एक प्लस में है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे स्मॉलर फ्रॉम बिगर, छोटा वाला को बड़ा से माइनस करेंगे, और साइन होगा बिगर का, माने बड़ा का। एक एग्जांपल देखिए, जैसे आप लिख रहे हैं +5 + -7, ऐसा है, ये दोनों को ऐड करना है, एक +5 है एक -7 है, तो एक अगर प्लस है दूसरा माइनस है तो क्या होता है, सब्ट्रैक्ट स्मॉलर फ्रॉम बिगर। इसमें बिगर कौन है, 7, स्मॉलर कौन है, 5, तो ये बिगर से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 5 2 लिख दीजिए, एंड साइन ऑफ बिगर, ये बड़ा वाला का साइन क्या है, माइनस। समझे आप, एक अगर प्लस में है दूसरा माइनस में है, तो बड़ा से छोटा को घटाइए और बड़ा का साइन लिख दीजिए, प्लस माइनस माइनस एंड साइन ऑफ बिगर,
ओके, इतना आप दिमाग में रखिए। एक दूसरा देखिए, और जैसे -8 और +5, ये दोनों को आप ऐड करना चाहते हैं। एक प्लस में है, दूसरा माइनस में है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 8 - 5 3, साइन बड़ा का होगा। कौन सा बड़ा है? ये, इसका साइन होगा। एक और एग्जांपल देखें, -3 +5, ये दोनों को ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस होगा, 5 से 3 घटा दीजिए 2, साइन विल बी ऑफ बिगर, बड़ा है 5, इसका साइन है प्लस, तो ये +2 होगा। इन दिस वे वी कैन ऐड 1 नेगेटिव एंड 1 पॉजिटिव। चाहे नेगेटिव पहले हो या नेगेटिव बाद में हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, नेगेटिव बाद में है, नेगेटिव पहले है। अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव है तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, छोटा को बड़ा से और बड़ा का साइन बैठा दीजिएगा। इस तरह से हम लोग, और तो कुछ नहीं हो सकता ना, दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, और तो चौथा हो नहीं सकता है। तो याद रखिएगा, अगर दोनों प्लस है तो प्लस 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 साइन विल बी ऑफ प्लस, माइनस माइनस प्लस साइन विल बी ऑफ माइनस। इफ 1 + 1 माइनस, देन देयर विल बी माइनस एंड साइन ऑफ बिगर। इतना चीज आप दिमाग में इसको रखिए। आगे देखिए, आगे आपको एक चीज जानना है। आगे हम लोग घटाएंगे, एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, उसके बाद डिवीजन भी सीखेंगे। ठीक है, इसको मिटा देते हैं पूरा। चलिए, अब आप देखिए एक चीज और, जैसे कहीं लिखा हुआ है +5, तो ये +5 और 5 एक ही चीज है। अगर आगे में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस है। बात समझे? प्लस साइन दीजिए या ना दीजिए, बात एक ही है। आगे में अगर कोई साइन नहीं है तो ये अंडरस्टूड है कि प्लस है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये ब्रैकेट आप समझते हैं, जैसे आप 2 - 3 लिखे हैं और आगे में ये ब्रैकेट में है और आगे में माइनस है। ठीक है, तो अगर इस तरह से ब्रैकेट है और आगे में माइनस है, तो जब ये ब्रैकेट आप हटाएंगे तो ये अंदर जो इंटीजर्स है इनका साइन चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए, ये अंदर जो इंटीजर है ये 2 का साइन क्या है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब प्लस है। और ये 3 का साइन क्या है? माइनस है। तो जब आप ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 2 का साइन जो प्लस है ना, ये माइनस हो जाएगा, और ये 3 जो माइनस है ना, ये प्लस हो जाएगा। इस तरह से ब्रैकेट के आगे अगर माइनस है तो ब्रैकेट को आप जब भी हटाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लिखे हैं -5 है, ये -5 है ब्रैकेट में और उसके आगे माइनस है, तो ये ब्रैकेट जब हटाएंगे ना तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -5 जो है ना वो +5 हो जाएगा। बात समझे? लेकिन ब्रैकेट के आगे अगर प्लस है, जरा देखिए, जैसे 2 - 3 + 5, जो भी आगे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट के आगे अगर माइनस साइन है तभी ब्रैकेट हटाने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, और किसी नंबर के आगे अगर कोई साइन नहीं है मतलब वो प्लस है। इतना चीज आप समझ गए। अब देखिए कैसे करते हैं हम लोग सब्ट्रैक्ट। अब हम लोग सीखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स। 2 इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन
घटाएंगे कैसे, जरा देखें। ये एक मान लीजिए प्लस, अच्छा ऐसा कीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। जैसे एक +5 है और दूसरा -6 है, आपको +5 से घटाना है -5। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम +5। ओके, जब आप घटाते हैं तो आप ऐसा कर लीजिए, ये +5 तो +5 को +5 लिखे या सिर्फ 5 लिखे, एक ही बात है। ये ब्रैकेट आप हटा लीजिए इसमें, ठीक है। ये ब्रैकेट जब हटाएंगे तो आगे माइनस है, ये हो जाएगा +6। समझ में आई बात। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये +5 और प्लस करना है 6 को मतलब वो तो +6 ही है ना, ये है। तो अब आप ऐड कर लीजिए, ऐड तो अभी सीखे हैं, दोनों प्लस है तो सीधा ऐड कर देंगे 11 और साइन होगा प्लस का, ठीक है। एक दूसरा देखिए, -6 -7 ऐसा है। -6 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है -7 को। आप क्या कीजिए, इसको -6, ये तो ठीक है, इसको रहने दीजिए। ये ब्रैकेट हटा लीजिए, तो ब्रैकेट हटा लेंगे तो ये हो जाएगा +7। अब इसको आप लिखिए -6, ये +7 मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 को +7 लिखे, दोनों तो एक है। तो ये हो गया आपका एक माइनस और एक प्लस, ये दोनों को ऐड करना है। तो एक प्लस और एक माइनस रहे तो आप छोटा को बड़ा से घटा लीजिए, 7 से 6 को घटा लीजिए 1, और साइन होगा बड़ा का, मतलब प्लस का। इन दिस वे वी कैन सब्ट्रैक्ट वन इंटीजर फ्रॉम अनदर इंटीजर। देखिए एक और, जैसे आप ले लिए, चलिए इधर प्लस ले लीजिए, +8 -10, +8 से माइनस करना -10 को। +8 मतलब ये सिंपली 8 है और ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 10। तो ये हो गया सिंपली +8 में ऐड करना है +10 को, तो ये हो जाएगा +18। In this way we can subtract one integer from another. So I hope you have understood how to subtract one integer from another integer. ठीक है, इस तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल आसान है और 5 मिनट का काम है। इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन तक हम लोग सीखेंगे, फिर दूसरे वीडियो में हम लोग डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है। लेट अस सी, अगर एक इंटीजर प्लस में है, दूसरा इंटीजर भी प्लस में है, ये दोनों को अगर आप इंटू करते हैं तो रिजल्ट जो होगा आपका प्लस में आएगा, इंटू हो जाएगा नंबर का और साइन होगा प्लस का। अगर एक माइनस में है और दूसरा भी माइनस में है, आप मल्टीप्लाई करते हैं तो भी रिजल्ट प्लस में आएगा। एक अगर प्लस में है और दूसरा माइनस में है, रिजल्ट माइनस में आएगा। एक अगर माइनस है दूसरा प्लस है तो भी रिजल्ट माइनस में आएगा। आपको इतना ही खाली जानना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अगर दोनों में से एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में आएगा, और अगर दोनों प्लस है तो प्लस में होगा, दोनों माइनस है तो भी प्लस में होगा। देखिए एक एग्जांपल, ऐसा -5 और इंटू करना है आपको -4, तो दोनों माइनस में है तो रिजल्ट आएगा प्लस में। 5 इंटू 4 20, समझ गए। एक अगर माइनस में है और एक प्लस में है, इसको इंटू करना है,
एक माइनस एक प्लस, तो रिजल्ट आएगा माइनस में। 3 इंटू 2 6। एक अगर प्लस में है, पहला प्लस है दूसरा माइनस है, आपको इंटू करना है, तो रिजल्ट आएगा माइनस में। 5 इंटू 3 15। इन दिस वे सिंपली वी कैन मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स। ओके, डिवाइड भी देख लीजिए लगे हाथ। ये जैसे मल्टीप्लिकेशन में 2-3 मिनट लगा, आपको डिवीजन में भी 2-3 मिनट लगेगा, है ना। डिवीजन भी देख लीजिए ताकि ये एक टॉपिक खत्म हो जाए। देख लीजिए डिवीजन। डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। ओके, देखिए एक अगर प्लस है, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं प्लस से, ये डिवाइड का सिंबल है या डिवाइड का सिंबल लिख लीजिए, एक ही बात है, तो रिजल्ट आपका प्लस में आएगा। एक अगर माइनस को आप डिवाइड करते हैं एक माइनस से, तो भी आपका रिजल्ट प्लस में आएगा। अगर आप एक प्लस को डिवाइड करते हैं माइनस से, तो रिजल्ट माइनस में आएगा। एक माइनस को अगर आप डिवाइड करते हैं प्लस से, तो भी आपका माइनस में आएगा। प्लस प्लस का डिवीजन प्लस होगा, माइनस माइनस का माइनस माइनस कैंसिल, ऐसे समझ लीजिए आप, प्लस हो जाता है। अगर एक प्लस एक माइनस है तो माइनस में आएगा। जरा देखिए इधर एग्जांपल, जैसे आप लिखे -15, इसको डिवाइड करना इधर -3, दोनों माइनस में है, तो सीधा माइनस माइनस है तो प्लस में आएगा। 3 5 जा 15, या ऐसे बोल लीजिए आप, माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, प्लस हो जाता है, सिंपल। अगर एक माइनस में है एक प्लस में है, तो क्या होगा, रिजल्ट माइनस में आएगा। एक प्लस एक माइनस रहने से रिजल्ट माइनस में। 3 5 जा 15। अगर आपका ऊपर प्लस है, ठीक है, नीचे माइनस है, तो भी रिजल्ट माइनस में होगा। आप 15 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, इस तरह से प्लस डिवाइडेड बाय प्लस, प्लस माइनस डिवाइडेड बाय माइनस, प्लस one plus another minus minus. In this way we can divide one integer by another integer. So I hope you have understood how to add two integers, how to subtract two integers, how to multiply as well as divide one integers by another integers. So in this video this much. In the next video we discuss something more related to integers. We solve some problems also. So in this video this much. Thank you for watching.